So through the green building regulations, we are also targeting the extra FSI related to it, which would enhance this profit margin to the next levels. So in a way, we are planning our services better for this project, enhance our restaurant facilities and amenities to the next level. So the extra FSI, extra profit margins, and extra reputation within the state. So yes, we are targeting better for our people in a better ways. So we are putting this services part within our business plan to cater all these things in required manners. Since we are introducing the national level kind of indoor sports complex activity within our city, we are totally liable to think about these services in better ways. Once these services are applied in right way, that too in a right manner, we can always boast for extra kind of facilities and amenities for our this project. The extra FSI we would get from this kind of things would be taken care for this kind of extra facilities and amenities, which would definitely benefit this project to the greater extent. The third one is the parking ratio. Now we all know how parking is a bigger problem in the city like ours. Parking is a huge problem, always for any kind of a project. So based on the FSI and the requirements stipulated by the government under the regulation 343/44 section A3, we are recommending and going for the 3 times more the parking numbers that government has stipulated for this kind of project and the activities. Yes, we have ample amount of land in terms of 10 acres plot, and that we are utilizing for the extra parking levels to multi-level car park or basement parking, or even through the mechanical parking, which will take care of more parking within the lesser space. So yes, we are thinking in streamlining all these things in terms of parking to cater all requirements through it. Since we are having indoor sports complex facility within our project, we are also thinking about the large scale buses and the containers as a part of parking. So the loading unloading part would be taken care as per it. So yes people, this is all about our business plan that we have shared with you. Rest all important details and other things are mentioned in the presentation shared by us. You can go through it as per your own time. Get hold of all the required things regarding this project. So yes people, this is all about our much celebrated project which we want to develop for our people, for our city and our state. It should enhance their reputation to the next level and would bring more prosperity to our people to enhance their skills in terms of entertainment and activities. Thank you all. Thank you for listening me to this length. गुड गोपाल दास गुड. तुमने तो बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स अपने पास रखे हुए हैं भाई. जितने भी रेगुलेशंस मैंने इस रेजुलेशन के हिसाब से पास करवा के रखे थे, सभी रेगुलेशंस को इसमें स्थान दिया हुआ है तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स ने. और ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए. इस प्रपोज़ल को तो मैं खुद भी चाह कर नकार नहीं सकता. अगर सब चीज़ें ठीक हो तो मैं अभी इस पर साइन करने के लिए भी तैयार हूँ. लेकिन एज़ पर द प्रोसीजर मुझे अपने एक्सपर्ट्स को इसके बारे में तो पूछना ही पड़ेगा. तो एक्सपर्ट्स, आपकी क्या राय है? सर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके रखी हैं, but still we have some kind of doubts regarding MSI index and the QI index. We want to thoroughly study this proposal in terms of their presentation, and based on that we would give remarks on this. Right now we can say this proposal is at par and rest all proposals that we do see in our मंत्रालय on daily basis. ये प्रपोज़ल सच में एक हटके प्रपोज़ल है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं
और बहुत सारे रेगुलेशन का ख्याल रखा गया है। आखिर एज अ गवर्नमेंट बॉडी हम चाहते ही क्या हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि सभी तरह से सुख सुविधाएं, जो भी फैसिलिटीज़ और प्रिकॉशंस जो हमें एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमें इस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल तो दिख रही हैं। बट वी स्टिल वांट टू गो कॉशियसली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अप्रूवल। हम इस प्रपोज़ल को और भी बारीकी से चेक करना चाहते हैं, और भी जो डिटेल्स इसमें दिए गए हैं उसके ऊपर हम बारीकी से देखना चाहते हैं, और उसके बाद ही हम अपने रिमार्क्स इसके ऊपर दे पाएंगे। तो सर जी बस इतना ही है हमारा कहना। गुड 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 एक्सपर्ट्स टीम, गुड। देखो गोपाल दास, फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा है कि हमारे एक्सपर्ट टीम को किसी भी प्रोजेक्ट में खामियां निकालने का कोई मौका भी नहीं मिला है। सोचो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स ने और उनकी टीम ने कितना अच्छा काम किया है इस प्रपोज़ल पर। सच में इसमें तो कुछ खामी ही मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हाँ, अगर रेगुलेशन से अलग कुछ चीज़ें हों तो मुझे अभी बता दो, तो मैं उसके ऊपर अभी विचार कर सकता हूँ। बाकी रेगुलेशन की माने ये प्रोजेक्ट एकदम एप्टली इस बारे में बैठ रहा है, उसके बारे में एकदम इस संदेह इसके ऊपर साइन करवा सकता हूँ, वो भी अभी के अभी। क्यों, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में गोपाल दास? अरे मैं क्या कहूँ अनंत, बात अगर तुम्हें और तुम्हारी टीम को पसंद आ चुकी है तो यू कैन एनीवेज साइन ऑन दिस प्रोजेक्ट। मुझे उसमें क्या, मैं तो भाई खुश ही हूँ इस बारे में। रही बात रेगुलेशंस और रेगुलेशन के बाहर की चीज़ें, भाई तुम तो मेरा काम जानते ही हो। जैसे कि तुमने मेरे बिजनेस पार्टनर्स की तारीफ़ की है, उनकी रेपुटेशन भी वैसी है कि उन्होंने रेगुलेशन से हटकर कभी कोई दूसरा काम किया ही नहीं है। तो जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में सब मेंशन किया हुआ है, आउट ऑफ रेगुलेशन जाकर कोई दूसरी एक्टिविटी तो होगी ही नहीं इस प्रोजेक्ट में। सब इस रेगुलेशन रेजोल्यूशन के हिसाब से जो भी नियम इसमें बनाए गए हैं, उन नियमों को देखकर ही हमने इस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से प्लान किया हुआ है, और जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स ने आपके सामने पूरी तरीके से आपको प्रेजेंट किया हुआ है। तो बस आप इसे गौर से देख लीजिएगा एक बार, और इस पर अपने रिमार्क्स तुरंत ही दे दीजिएगा। हम आपका वेट करेंगे कि कब ये प्रपोज़ल आपकी तरफ से पास होकर हमारे पास आ जाता है, और फिर एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हम अपने सिटी को, अपने शहर को बहुत ही आनंद के साथ हम उन्हें दे पाएंगे। इसका एक अलग ही आनंद होगा हमें। क्यों आनंद, सच कह रहा हूँ ना मैं?
हाँ हाँ गोपाल दास, क्यों नहीं। इतना अच्छा प्रपोज़ल अगर हमारे सिटी में आ गया, वो भी 2 in 1, सोचो इस सिटी का रौब तो कुछ और ही होगा। हर किसी को नेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हमारे सिटी में चाहिए होते हैं, वो भी अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए एक अलग लेवल पर। ऐसी फैसिलिटीज़ अगर अपने खुद के सिटी में हो तो वो सोने पे सुहागा होता है हर किसी के लिए। तो सच में हमने जो ACCS बॉडी के लिए जो सेक्शन ढूंढा हुआ है, सच में काबिल तारीफ़ है। इसको तो ACCS वाले भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ ACCS कैंपस के पास इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ही कमी है, जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम उन्हें दिला सकते हैं। और अगर हम उसे नेशनल लेवल का बना लेते हैं, गवर्नमेंट भी उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी। रही बात FSI और बाकी सब वर्क्स की, उसकी तुम कभी भी चिंता मत करना। अगर ये प्रोजेक्ट सही हिसाब से A रैंकिंग के हिसाब से आगे बढ़ता है, तो इससे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़, जो भी अप्रूवल्स तुम्हें चाहिए, वो मैं पहले ही फटके में तुम्हें दे दूँगा। इसके बारे में तुम निश्चिंत रहना। हमारी एक्सपर्ट टीम तो ये सब सुन ही रही है। बीच में किसी ने मुझे टोका भी नहीं है, मतलब उनकी भी इसमें हामी है। क्यों पीपल, डू यू एग्री विथ मी दिस पर्टिकुलर थिंग? यस सर, व्हाई नॉट। होल प्रपोजल इज माइंड ब्लोइंग, taking care of rest all required things which are needed for this kind of project. पार्किंग से लेकर सर्विसेज तक हर चीज़ के बारे में बारीकी से सोचा गया है इस प्रपोज़ल में। और हमें क्या चाहिए? हमारी तो पूरी लाइफ चली जाती है सामने वाली टीम को ये बताने में, भाई तुम्हें इतने नंबर की पार्किंग लगेगी, आपको इतने तरीके के सर्विसेज लगेंगे, वो सब कैटर करने के बाद ही हम आपको अप्रूवल दे पाएंगे। लेकिन यहाँ तो माहौल उल्टा है। यहाँ तो पहले से ही सभी चीज़ों के बारे में पहले से ही सोचा गया है। उससे हमें पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे गोपाल दास टीम इतनी दूर तक अपनी सोच रखती है, और ये हमारे शहर के लिए और इस प्रपोज़ल के लिए बहुत उम्दा बात होगी, जिसकी हमें तारीफ़ तो करनी ही होगी। अगर जितनी भी बातें इस प्रपोज़ल में बताई गई हैं अगर ठीक तरीके से फॉलो हुई, सोचिए ये प्रपोज़ल शहर का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसके लिए हमको गोपाल दास जी को धन्यवाद तो देना ही होगा। फिर भी द पार्ट ऑफ प्रोसीजर में प्रेजेंटेशन को एक बार फिर से गो थ्रू करना होगा, उसके बाद ही हम हमारे रिमार्क्स दे सकते हैं। गोपाल दास, देखो अब तो हमारे एक्सपर्ट की टीम भी राज़ी है इस प्रपोज़ल के बारे में। तुम्हारा क्या कहना है गोपाल दास? तुम भी तो कुछ कहो। अरे मैं क्या कहूँ अनंत, बात तो तुमने सामने सामने देख ही ली है, और तुम्हारे टीम ने भी, और इतने पॉजिटिव रिमार्क्स भी आप लोग अभी इस पर दे रहे हो। तो मेरा यही कहना है और यही सोचना है कि जितना आपने वर्बली इस प्रोजेक्ट के बारे में इतने रिमार्क्स दिए हैं, उतने ही रिमार्क्स राइटिंग में इस प्रपोज़ल के बारे में हमें दे दिए जाए, ताकि हम हमारा काम आगे बढ़ा सके। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे थ्रू इस प्रपोज़ल को एक आसान अप्रूवल मिल जाए। बाकी A रेटिंग के हिसाब से इस प्रपोज़ल को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब मैं आराम से देख लूँगा, उसके बारे में तुम चिंता ना करना। इसमें हमने इंस्पेक्शन क्लॉज भी ऐड किया हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टाइम टू टाइम इस प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली ऑन साइट बट ऑल्सो ऑन ऑफिस लेवल, जहाँ पर हर एक पेपर, हर एक सैंक्शन, हर एक अप्रूवल वो आराम से चेक कर सकते हैं, और उसके बारे में निश्चिंत होकर आप अपना काम और अपना इंस्पेक्शन आगे बढ़ा सकते हो। बस एक बार इसे सभी लेवल पर सैंक्शन मिल जाए तो हम हमारा काम आगे बढ़ा सके, और इस शहर को, जैसा कि हम सब चाहते हैं, एक अच्छी फैसिलिटी अपने ही शहर में, अपनी ही गली में हम उन्हें दे सकें। बस और क्या चाहिए। मुझे तुम्हारा साथ इसमें बहुत अच्छी तरीके से चाहिए अनंत, ये बस तुम ही कर सकते हो, सिर्फ तुम। तो इस बारे में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे टीम के साथ इसके ऊपर काम करके इस पर जल्द ही जल्द अच्छे रिमार्क्स देकर इसे आगे बढ़ाओ, सैंक्शन देकर,
ताकि हम हमारे काम में आगे बढ़ सके। तुम्हारी तरफ से बस मैं इतना ही सब चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे एक्सपर्ट भी तुम्हारे शब्दों को प्रमाण मानकर इस पर सही सही अपनी राय दे और इस प्रोजेक्ट का काम कम समय में आगे बढ़ते रहे। बस यही मैं चाहता हूँ, और कोई दबाव मैं तुम पर लाना नहीं चाहता। क्यों, समझ गए ना तुम अनंत? हाँ हाँ गोपाल, क्यों नहीं। अब ये तो कोई दबाव ही नहीं रहा। तुम अगर इतना अच्छा प्रपोज़ल अपने शहर के लिए ला सकते हो तो इसमें दबाव की कौन सी बात है। तुम्हारा प्रोजेक्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दिख रहा है। बाकी तो सब हमारे एक्सपर्ट तो देख ही लेंगे, तो देखेंगे उस हिसाब से क्या होता है आगे। अगर सब कुछ क्लियर करा कर हमारे एक्सपर्ट्स किसी दिन ये फ़ाइल मेरे सामने लाएंगे साइन के लिए, मैं तुरंत ही उस पर साइन करा दूंगा और ये प्रोजेक्ट अप्रूव होके तुम्हारे पास आ जाएगा आगे करने के लिए। तो बस वक्त का तकाजा है, काम तो तुम्हारा होना ही है। इस बारे में तुम गारंटी रखना, ठीक है? ये मेरा वादा है। वैसे इन दोनों का नाम क्या बताया? जी, मैं जनार्दन लेले, बिजनेस पार्टनर ऑफ मिस्टर गोपाल दास मिस्त्री, एंड ही इज़ मिस्टर जयवंत गावड़े। ही इज़ ऑल्सो द बिजनेस पार्टनर ऑफ माइन एंड ऑल्सो गोपाल दास मिस्त्री जी। गुड गुड, गुड वर्क जेंटलमैन, गुड वर्क। अगर आप ऐसा ही काम करते रहो तो आगे जाकर शायद मेरे भी कुछ बिजनेस प्रपोजल पर आप काम कर सको। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली दूर है, देखेंगे इस प्रपोज़ल में हमारी गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन गुड, गुड टू हैव अ इंट्रोडक्शन विद सच काइंड ऑफ पीपल दिस डे। गुड पीपल, गुड। ऐसे ही काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सबका साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं इस शहर में। क्यों, सही कहा ना गोपाल दास? बिल्कुल सही कहा अनंत। तुम्हारी इन बातों से तो मैं बहुत ही खुश हो गया आज। सच में एक बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से उतर चुका है। सच में इस प्रपोज़ल के लिए मैं बहुत परेशान था, लेकिन आज इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं खुद भी इस प्रेजेंटेशन के बारे में हैरान हूँ। और सच में तुम्हारा सहयोग इस प्रपोज़ल में मिलने के बाद ये प्रपोज़ल चार चांद छू लेगा इस शहर में। अब इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। क्यों सर जी, अब क्या लगता है आपको? अब तो आप खुश हो ना इस प्रपोज़ल के बारे में कि फाइनली हमारा काम होने की कगार पर है। क्यों, आपका क्या कहना है इसके बारे में सर जी? अभी दिल्ली दूर है जनार्दन। तुम इस अनंत कुमार को नहीं जानते। ये बहुत टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर। और उसके एक्सपर्ट, वो तो सामने कुछ और दिखाते हैं और बाहर कुछ और। इन लोगों को समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सामने कुछ और बताते हैं और करते हैं कुछ और ही। इसलिए अभी दिल्ली दूर है हम सब के लिए। हाँ, ये बात तो सच है। प्रेजेंटेशन जेन्युइनली बहुत ही अच्छा हुआ था तुम लोगों का, और पसंद भी आया हम सबको। मुझे तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ही पसंद आया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुख्य सेवक अनंत कुमार जोशी को भी ये प्रपोज़ल बहुत ही पसंद आया होगा, और उसने वो कहा भी मीटिंग के दरमियान। लेकिन असल बात अभी आगे होगी, जब उनके एक्सपर्ट्स हमारे पूरे प्रेजेंटेशन और हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके अपनी राय पेपर पर लिखेंगे। आखिर में जाकर ये पेपर पर लिखी हुई राय ही हमारे लिए आगे का काम करेगी। तो अभी ये सब मिलकर हमारे प्रपोज़ल के बारे में इतना अच्छा कह रहे हैं, तो हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है जनार्दन, बल्कि हमें आगे के दिनों में बहुत चौकन्ना रहना होगा। हमें बस ये देखना होगा कि इनके एक्सपर्ट्स इस प्रपोज़ल के बारे में क्या रिमार्क्स रखते हैं। शायद तुम्हारा काम अब हो चुका इस प्रेजेंटेशन को लेकर, लेकिन अब मेरा असल काम शुरू होगा। मुझे कल से ही अनंत कुमार के ऊपर एक अलग दबाव बनाकर रखना होगा, ताकि वो अपने एक्सपर्ट्स को एक अलग दबाव के नीचे दबाकर
इस प्रपोज़ल के लिए कुछ अच्छे रिमार्क्स जुटा पाए जो हमें अप्रूवल में इस प्रोजेक्ट के लिए काम में आए। बस यही सब जुगाड़ मुझे आगे करना होगा, उसके बिना हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। वरना कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी प्रपोज़ल के लिए, लेकिन यहाँ मैं अनंत कुमार को कोई मौका नहीं देना चाहता हमारी तरफ से। इसलिए अभी मेरे दबाव तंत्र का प्रभाव अभी मुझे शुरू करना ही होगा, जिसके ज़रिए अनंत कुमार और उसके एक्सपर्ट को हमारे काम में हमसे हाथ मिलाना ही होगा और जैसा हम चाहते हैं वैसा अप्रूवल उन्हें देना ही होगा इस सब में। बस यही सब चीज़ें मैं आगे देख रहा हूँ। जी सर जी, एकदम सही कहा आपने। ये तो एकदम पते की बात की है आपने। लेकिन हाँ, आपको तो ये बात माननी होगी कि आज का दिन सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही था। ये बात अलग है कि उन्होंने शायद पूरी बात हमारे सामने नहीं रखी होगी, ये वाजिब भी है। लेकिन इतना तो आप मान ही लोगे कि आज तो मैदान हम सब ने मार ही लिया था। क्यों, आप भी ये बात मानते ही हो ना? हाँ जनार्दन, अगर तुम्हारी तसल्ली के लिए अगर ये चाहते हो तुम, तो हाँ ज़रूर। आज के दिन में हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा मैदान मारा अनंत कुमार के सामने और उसके लोगों के सामने। सच में प्रेजेंटेशन तो इतना बढ़िया था कि बीच में मैं भी बहुत खुश हो गया था। तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं बीच बीच में अनंत कुमार और उसके टीम की रिएक्शंस देख रहा था और जितना मैं जानता हूँ वो भी उसमें प्रभावित दिखे इस प्रपोज़ल को लेकर। शायद ऐसा था कि उन्होंने उस पर कोई भी नेगेटिव रिमार्क्स अब तक नहीं दिया है, लेकिन जैसा कि उनकी टीम ने कहा है वो एमएस इंडेक्स और क्यूआई इंडेक्स पर गौर से उस सभी चीज़ों को फिर से चेक करना चाहेंगे। तो इसका मतलब यही है कि फ़िलहाल हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। मुझे मेरा दबाव तंत्र आगे बढ़ाकर ये काम करवा कर लेना ही होगा, वो भी अलग तरीके से।